हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम सभी टाइप के केमिकल्स रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो देखते हैं types of chemical reaction. On the basis of energy changes and nature of reactions, the chemical reactions are classified into following types. These chemical reactions are mainly classified into two groups on the basis of nature of reaction and on the basis of energy changes. On the basis of nature of reaction. On the basis of nature of reaction, chemical reactions may be classified as combination reaction, decomposition reaction, displacement reactions, double displacement reactions, neutralization reaction and redox reaction, जिसको हम कहते हैं oxidation reduction reaction. चलो देखते हैं combination reaction. A chemical reaction in which two or more substances combine together to form single substance are called combination reaction. इसमें क्या होता है? two or more substances, जिनको हम कहते हैं reactant, combine होते हैं और उनसे एक ही single substance बनता है, जिसको हम कहते हैं product. जो chemical reactions में participate होते हैं उसको हम कहते हैं reactant, जो नए substances बनते हैं उनको हम कहते हैं product. So in this chemical reaction only one substance is formed, जिसको हम कहते हैं product. Two or more substances combine, single product is formed. For example, A is a one reactant plus B is another reactant. When these two reactants combine, form single product C. That is a new product is formed C. So two or more reactants combine, single product is formed. This type of chemical reaction is called as a combination reaction. Let's see activity. इसमें हम देखेंगे combination reaction between calcium oxide and water. इसके लिए हमें मटेरियल चाहिए water 500 ml beaker, calcium oxide जिसको हम quicklime कहते हैं. क्या करना है इस एक्टिविटी में? प्रोसीजर क्या है देखते हैं. Take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker and slowly add water to this. क्या किया है हमने? एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और उसमें थोड़ा सा वाटर क्या किया है? ऐड किया है. टच द बीकर. बीकर को हम टच करेंगे तो हमें क्या फील होता है इसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? इसमें हमें कुछ चेंज दिखता है कि नहीं दिखता है, ये ऑब्जर्वेशन हमें नोट करना है. ऑब्जर्वेशंस आर as soon as the quicklime is added to water. जैसे ही हम quicklime water में ऐड करते हैं, the temperature starts rising. इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है. After some time, the temperatures become so high that the water start boiling and the wall of the beakers very hot. तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है. जैसे वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट होते हैं, टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग. इतना टेम्परेचर बढ़ता है कि उसमें जो वाटर होता है वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, जिससे वॉल ऑफ द बीकर बिकम वेरी हॉट. यहाँ पे रिएक्शन किस किस की हो गई? कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. इससे हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा. वो प्रोडक्ट क्या होगा? केमिकल इक्वेशन क्या होगा इसका देखते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaO, जिसको हम क्विकलाइन कहते हैं, कंबाइन विथ वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैक्ट लाइम कहते हैं. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने से हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से वॉल ऑफ द बीकर बिकम हॉट एंड हीट एनर्जी रिलीव. यहाँ पे ये टू रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए, सिंगल प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. This is the combination reaction. What is the conclusion of this reaction? In this reaction, calcium oxide and water combine to form single compound calcium hydroxide. During this combination reaction, large amount of heat release
and a hissing sound is produced. यह है हमारा conclusion of this reaction. Some more examples of combination reactions देखते हैं. Burning of coal. अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है? जैसे कोल को हम बर्न करते हैं तो इससे हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड. बर्न करते हैं मतलब कोल किससे रिएक्ट होगा? ऑक्सीजन से. So when carbon combine with oxygen on burning process form carbon dioxide and heat energy release. Carbon and oxygen are reactant. Carbon dioxide is the product. Another example, formation of water from hydrogen and oxygen. Hydrogen burns in oxygen to form water. Hydrogen plus oxygen form water. Hydrogen and oxygen are reactant. Water is a single product. This is the another example of combination reaction. Another type of chemical reaction is the decomposition reaction. What is meant by decomposition reaction? A chemical reaction in which a single compound breaks into smaller or simpler substances are called decomposition reaction. यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स में, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर सिंपल सब्सटेंसेस, दीज आर द प्रोडक्ट्स. AB is a single compound. Form A and B, these are the two simple products. So breakdown of single compound into simple substances are known as a decomposition reaction. इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम decomposition reaction कहते हैं. Decomposition reaction can be of three types. Thermal decomposition reaction, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके डिकम्पोजिशन करते हैं. एंड थर्ड, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम फोटोलिसिस कहते हैं. लाइट का यूज करके हम सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सिंपलर फॉर्म. So these are the three types of decomposition reaction: thermal decomposition, electrolytic decomposition, photo decomposition. चलो देखते हैं thermal decomposition reaction. Those reaction in which decomposition is carried out by heating are called thermal decomposition reaction. यहाँ पे decomposition करने के लिए हमने यूज किया है heat. So AB is a single reactant, breaks into the two simpler substances. To break down this simple compound, we provided heat energy. So using heat energy, single compound breaks into simpler substances. This type of chemical reaction is called thermal decomposition reaction. एक्टिविटी देखते हैं. हमें रिएक्शन करना है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. इसके लिए हमें मटेरियल लगेगा बॉइलिंग ट्यूब, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्नर, कैंडल, स्पिरिट लैम्प. इनमें से कोई भी एक जो हमें हीट प्रोवाइड करने के लिए यूज करना है. प्रोसीजर क्या है? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट. हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर. हमने एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लिया है, उसका बिफोर हीटिंग कलर क्या है उसको नोट करना है और फिर इसको बर्नर पे हीट करना है. व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशंस आर द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज ग्रीन बिफोर हीटिंग. हीट करने से पहले इसका कलर था ग्रीन कलर. FeSO4, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट. इसके अंदर 7 H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं. आफ्टर हीटिंग द कलर, ग्रीन कलर था उसका क्या हो गया? चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट एंड फाइनली इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन. सो बिफोर हीटिंग कलर था ग्रीन, आफ्टर हीटिंग पहले हो गया व्हाइट एंड फाइनली हो गया रेडिश ब्राउन. गैस विथ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज योर्ड.
इसमें एक गैस निकलता है जिसका स्मेल आता है, जैसे सल्फर को हम बर्न करते हैं उस टाइप में. In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals loses water when heated and then color of the crystal changes. In the decomposition reaction, ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide, these are the new products are formed. Ferric oxide solid white, sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. जो डिकम्पोजिशन हो गया इसमें हमें जो प्रोडक्ट्स मिले वो थे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. केमिकल रिएक्शन देखते हैं. फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो गया बाय प्रोवाइडिंग हीट. हमें मिल गया फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. So ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, these are the products. हमें किससे मिले? From ferrous sulfate by heating process. So this is the another example of thermal decomposition reaction. What are the conclusions? When ferrous sulfate heated strongly, it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. जो हमें बर्निंग ऑफ सल्फर का स्मेल आ रहा था वो कौन से गैसेस थे? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दीज आर द प्रोडक्ट्स इन दिस केमिकल रिएक्शन. अनदर एक्टिविटी देखते हैं. टू स्टडी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स. ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हमें देखना है. इसके लिए हमें मटेरियल लगेगा बॉइलिंग ट्यूब, लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स, अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्नर, कैंडल, स्पिरिट लैम्प, इसमें से कोई भी एक. प्रोसीजर हमें क्या करना है? टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. नोट द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट. हीट बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर. जैसे हमें पहला वाला एक्टिविटी किया था सेम एक्टिविटी करना है. इसमें हमें लेना है लेड नाइट्रेट. फाइनली ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग. तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा? लेड नाइट्रेट का कलर बिफोर हीटिंग था व्हाइट. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड येलो सॉलिड ऑफ लेड ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब. तो लेड नाइट्रेट से हमें मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमें रेडिश ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में निकलता हुआ दिखेगा और बाद में हमें मिलता है लेड ऑक्साइड. बचा हुआ लेड ऑक्साइड हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलेगा. केमिकल इक्वेशन क्या है? लेड नाइट्रेट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है PbNO3 जब हम इसको हीट करते हैं हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड. So this is the thermal decomposition of lead nitrate. Conclusion क्या है? Lead nitrate on thermal decomposition produces brown fumes of nitrogen dioxide and oxygen gas. Thermal decomposition of calcium carbonate, ये अगला वाला एग्जांपल हम देखेंगे. So इसको हम जब हीट करते हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. On heating, calcium carbonate breaks down into calcium oxide and carbon dioxide. Another type of decomposition reaction जिसको हम कहते हैं electrolytic decomposition reaction or electrolysis. Those decomposition reaction which are carried out by electric current are called electrolytic decomposition reaction. यहाँ पे हम decomposition कर रहे हैं using electric energy. AB is a single reactant break down into A and B simpler substances. To break down this single compound, we provided electric current. So electric energy is used to break down single compound into the simpler substances. चलो देखते हैं electrolysis of water. इसके लिए हमें लगेगा प्लास्टिक मग, ग्रेफाइट रॉड्स, टेस्ट ट्यूब, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, बैटरी एंड रबर स्टॉपर. इसकी प्रोसीजर क्या है?
Take a plastic mug and make 2 small holes at its bottom. Feed the 2 graphite rods or electrodes with the help of cork to make it leak-proof. Feed the mug on the stand. Fill the mug with water and add 2 to 3 drops of dilute sulfuric acid to it. Invert 2 test tubes full of water over the electrodes. Complete the circuit by connecting the lower terminals of the graphite electrodes with battery and observe carefully. इसमें हमने क्या क्या किया है, एक बीकर लिया है, इसके अंदर नीचे से 2 होल बनाया है, 2 इलेक्ट्रोड्स हमने फिक्स किए हैं, इसमें वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन उसमें डाला है, ये बीकर को हमने स्टैंड के साथ फिक्स किया है. फाइनली जो कैथोड एंड एनोड हमने जो रॉड्स लिए थे इलेक्ट्रोड्स, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इसमें क्या चेंजेस हो गए हमें ऑब्जर्व करना है. तो इसमें जो चेंजेस होंगे, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. ऑब्जर्वेशंस क्या है? व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द वाटर, द बबल्स आर प्रोड्यूसेस इन टेस्ट ट्यूब्स and started rising, but the level of water started falling. The 2 test tubes have different amount of gases. Breakdown हो गया जिससे बन गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ये जो बबल्स है, बबल्स राइज हो रहे हैं, बबल्स के प्रेशर की वजह से, गैस के प्रेशर की वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर का वाटर लेवल क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है. दोनों टेस्ट ट्यूब में जो हमें गैस बबल्स दिखते हैं वो अलग अलग अमाउंट के होते हैं. एक में हाइड्रोजन हो रहा है, एक में ऑक्सीजन हो रहा है, उसका रेशियो अलग अलग है. द हाइड्रोजन गैस गेट्स कलेक्टेड इन कैथोड चेंबर एंड ऑक्सीजन गैस गेट कलेक्टेड इन एनोड चेंबर. कैथोड चेंबर मतलब ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इसके तरफ जाएगा पॉजिटिव आयन जो हाइड्रोजन होता है. तो हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इन कैथोड चेंबर. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन इज अ नेगेटिव आयन, तो ये एनोड की तरफ जाएगा, एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड इन एनोड चेंबर. The volume of hydrogen gas is 2 times than that of oxygen. हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन से दुगना है, which indicate that the ratio of hydrogen and oxygen element in water is 2:1 by volume. इनके वॉल्यूम के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 2:1. कंक्लूजन क्या आएगा? वाटर ब्रेक्स इनटू hydrogen and oxygen by providing electric current. Similarly, electrolysis of aqueous sodium chloride solution. जैसे हमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था वैसे ही हमें सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है by providing electric current. So when electric current pass through the aqueous solution of sodium chloride, then we get sodium hydroxide, hydrogen and chlorine gas. तो इससे हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस. हाइड्रोजन एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगा, क्लोरीन गैस अलग वाले टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगा, डिपेंड अपॉन द चार्जेस प्रेजेंट ऑन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाइड्रोजन कलेक्ट होगा कैथोड चेंबर में. क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन कलेक्ट होगा एनोड चेंबर में. This method is used to manufacture sodium hydroxide on large scale. इस तरह की मेथड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किया जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. दिस इज अ सोडियम क्लोराइड. इट इज इन अ सॉलिड फॉर्म, dissolved in water. So solution of sodium chloride by electrolysis process breaks into sodium hydroxide, hydrogen and chlorine. So chlorine collected in anode chamber, hydrogen collected in cathode chamber. Electrolysis of molten sodium chloride. अभी हमने देखा था सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अभी हमें सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करना है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है. When electrolysis of molten sodium chloride is done, we get sodium metal on cathode and chlorine gas on anode. मतलब ये दो अलग अलग हो जाएंगे from sodium chloride.
So sodium chloride breaks down by using electric current into the sodium and chlorine. Photolysis और photo decomposition reaction. अब यहाँ पे हमें यूज करना है लाइट का. Those decomposition reaction in which the light is absorbed or required to carry out the decomposition reaction are called photo decomposition reaction. यहाँ पे important क्या है? Light. AB is a single compound, breaks into A and B simpler substances using sunlight. For breakdown of single compound into simpler substances. Activity देखते हैं. Photo decomposition of silver chloride. To study photo decomposition of silver chloride, materials are required. China dish, silver chloride, light. Procedure क्या है इसका? Take a china dish and add approximately 2 grams silver chloride into it. Place the china dish containing silver chloride in sunlight. Observe the color of silver chloride after some time. Observations are, after some time, white colored silver chloride changes to grayish white due to the formation of silver metal in this reaction. White color silver chloride चेंज होगा ग्रेइश व्हाइट कलर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल. इसमें क्या बन गया? सिल्वर मेटल बन गया. सिल्वर क्लोराइड AgCl decomposed by light energy form silver and chlorine gas evolved. तो हमें जो ग्रेइश व्हाइट कलर का जो मटेरियल मिलता है वो होता है सिल्वर. इसमें क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है. So these are the two simple substances formed by breakdown of silver chloride. Silver and chlorine are the simple substances. Conclusion क्या होगा? Silver chloride undergoes photo decomposition in the presence of sunlight to produce silver metal and chlorine gas. Displacement reaction. The chemical reaction in which more reactive metals or non-metals displace a less reactive metal or form its aqueous salt solution is called displacement reaction. इसमें क्या हो रहा है? More reactive metal और non-metal less reactive metal और non-metal को displace करेगा. चलो एग्जांपल देखते हैं. AB is a one reactant, C is another reactant. So these are the two reactants. इसमें क्या हो रहा है देखिए. C is a more reactive than B. तो C B को डिस्प्लेस करेगा. मतलब C B की जगह जाएगा तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा? AC और B अलग हो जाएगा. मतलब C की जगह जाएगा तो हमें B अलग मिलेगा. तो C is a more reactive displaced less reactive metal B. So in the chemical reaction, more reactive metal or non-metal displace less reactive metal or non-metal. So this is the displacement reaction. Displacement reaction may have the following features. In this reaction, the color changes may take place. इसमें color change होता है. They may involve formation of precipitate. यहाँ पे precipitate form होता है. This can be shown by ionic compound. जो ionic compounds होते हैं इनमें हमें displacement reaction दिखता है. These are redox reaction. इस रिएक्शन को हम redox reaction भी कहते हैं. So redox reaction क्या है ये हम आगे देखेंगे. So these are the some features of displacement reaction. Activity देखते हैं. To carry out displacement reaction between iron nail and copper sulfate. हमें iron nail and copper sulfate का solution जो है इसकी reaction करनी है और हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होती है. इसके लिए हमें मटेरियल लगेगा टेस्ट ट्यूब्स, एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल्स. प्रोसीजर्स देखते हैं. टेक 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take 10 ml copper sulfate solution. Fix one test tube with a stand. Tie 2 iron nails with thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube for about 20 minutes.
Keep one iron nail aside for comparison. तो इस तरह से हमें प्रोसीजर करना है। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उसको हमने नाम दिया A एंड B। 3 आयरन नेल्स लिए, एक टेस्ट ट्यूब को हमने स्टैंड के साथ फिक्स किया, उसमें 2 आयरन नेल्स थ्रेड के साथ डिप किए। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन बाद हमें जो आयरन नेल्स है उनका कलर किस तरह से होता है उसको चेक करना है, जो हमने एक अलग आयरन नेल बाजू में रखा था उसके साथ कंपेयर करके। एंड जो दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब था उसमें हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था, उसका कलर और रिएक्शन के बाद जो टेस्ट ट्यूब हमने स्टैंड को फिक्स किया है उसका कलर किस तरह से चेंज होता है, इसको हमें कंपेयर करना है। सो केमिकल इक्वेशन क्या है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कंबाइन विथ आयरन नेल फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर मेटल डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा जिससे कॉपर सल्फेट से अलग हो जाएगा। फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द कंक्लूजन? आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so it can be displaced copper from its aqueous salt solution. Another type of chemical reaction, double displacement reaction. The chemical reaction in which exchange of ions takes place when the aqueous solution of 2 ionic compounds are mixed together are called double displacement reaction. Displacement reaction में more reactive, less reactive को displace करता था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे आयन एक्सचेंज होते हैं, मतलब अगर एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा तो दूसरा वाला पहले को डिस्प्लेस करेगा, एक दूसरे की जगह रिप्लेस करेंगे। देयर इज द एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 आयोनिक कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AB is the one compound, CD is the another compound. There is the exchange of ion. C और B एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो A के साथ C कंबाइन होगा, B के साथ D कंबाइन होगा, तो हमें क्या मिलेगा? AC plus BD. So these are the two products. So there is a exchange of ions takes place when aqueous solution of 2 ionic compounds are mixed together. यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए हमें मटेरियल लगेगा टेस्ट ट्यूब, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। प्रोसीजर में क्या करना है? ये 2 सॉल्यूशन को हमें मिक्स करना है। टेक एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन इट, ऑब्जर्व केयरफुली। व्हाट इज ऑब्जर्वेशंस? एज सुन एज द 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर, the white precipitate of barium sulfate is obtained which gets settled at the bottom. जैसे हमने 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया, हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, वो होता है बेरियम सल्फेट। As soon as the 2 solutions are mixed together, the white precipitate of barium sulfate is obtained which gets settled at the bottom. केमिकल इक्वेशन क्या होगा? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2 combined with Na2SO4 is the molecular formula of sodium sulfate. सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, बेरियम सल्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन होगा, so there is the exchange of ion. हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट, it is the precipitate, and सोडियम क्लोराइड। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हमें मिले by double displacement reaction. So there is the exchange of ions. कंक्लूजन क्या होगा? Barium chloride and sodium sulfate undergoes double displacement reaction as barium chloride and sodium sulfate exchange their ions to form white colored barium sulfate and solution of sodium chloride. Neutralization reaction. The chemical reaction in which either acid is neutralized by base or base is neutralized by acid to form salt and water. Acid base को neutralize करेगा या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, इसमें हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये होती है एसिड और बेस में। द रिएक्शन कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिड प्लस बेस हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड
is a base, combine with hydrochloric acid, form salt and water. Sodium hydroxide is a base, hydrochloric acid is a acid, हमें मिल गया सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट एंड वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या अनदर एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट एंड वाटर. थर्ड एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर. सो व्हेन base and acid react, form salt and water. ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? इस प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा. कैसे होता है देखते हैं. कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. यह रिएक्शन हीट प्रोवाइड करने से होगी. सो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं. कॉपर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट होगा बाय प्रोवाइडिंग हीट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. सो ये जो एग्जांपल है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का है. एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो उसका ऑक्साइड बन रहा है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. आयन अगर सल्फर के साथ रिएक्ट होगा बाय प्रोवाइडिंग हीट फॉर्म आयन सल्फाइड. ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि सल्फर पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये एग्जांपल है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहां पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर ऑक्सीजन एडिशन होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एडिशन होता है, अगर हाइड्रोजन रिमूवल होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूवल होता है, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन, अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बिल्कुल उल्टा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन. सो नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो फॉर्म होगा NH3. दिस इज अ एडिशन रिएक्शन. जिंक ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है कार्बन के साथ, फॉर्म होगा जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ, फॉर्म होगा कॉपर एंड वाटर. दिस इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. In reduction reaction, there is the addition of hydrogen or addition of electropositive element, or removal of oxygen or removal of electronegative element. This reaction is known as reduction reaction. Redox reaction, the chemical reaction in which one reactant gets oxidized while other get reduced during reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction और रेडक्स रिएक्शन. यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन. यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अगर कंपाउंड ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कंपाउंड भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक ही साथ हो रहा है. इसको हम कहते हैं रेडॉक्स. इसका एग्जांपल देखते हैं. रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बाय प्रोवाइडिंग हीट फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अब यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है एंड रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो ये एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन का. जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। अनदर एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बाय प्रोवाइडिंग हीट, कॉपर एंड वाटर इज फॉर्म। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। अनदर एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज द मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म मैग्नीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसको कौन सा वाला रिएक्शन कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इट इज एग्जांपल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन निकल गया, इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ redox reaction. On the basis of energy changes, there are two types of chemical reaction, exothermic reactions and endothermic reaction. Exothermic reaction, those chemical reactions in which heat energy is released during the chemical reaction are called exothermic reaction. जब यह रिएक्शन होती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The energy may also be other form of energy in place of heat. जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट एनर्जी के अलावा अदर फॉर्म में भी हो सकती है। इट मे बी इन लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड समटाइम्स साउंड एनर्जी। So when energy is released during the chemical reaction, this type of reaction is known as exothermic reaction. Example, burning of natural gas. Methane is a natural gas. When burned, combine with oxygen and form carbon dioxide and water. तो यहाँ पे क्या हुआ, मीथेन बर्न हुआ, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर वेपर फॉर्म होते हैं और इसमें से हमें हीट एनर्जी मिलती है। सो देयर इज अ रिलीजिंग ऑफ हीट एनर्जी, तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इससे हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो रिलीजिंग ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So respiration reaction is another example of exothermic reaction. Burning of hydrogen, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हमें मिलेगा वाटर, इस रिएक्शन में हमें हीट एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, those chemical reactions in which heat energy is required during the reaction are called endothermic reaction. केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हीट एनर्जी लगती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द एनर्जी में आल्सो बी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन प्लेस ऑफ हीट। एग्जांपल्स आर लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समटाइम्स साउंड एनर्जी। एग्जांपल देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज अ लाइमस्टोन, इसका डिकम्पोजिशन हो गया बाय प्रोवाइडिंग हीट, जिससे हमें मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट इस रिएक्शन के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हीट एनर्जी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपल फॉर्म। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन with examples and some activities.